آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم دین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو صحیح سمے پر مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی دوسری شرط ستر عورت کا بیان۔ ستر کتنا فرض ہے، یعنی نمازی کے لیے کم سے کم کتنا بدن کا ڈھکا رہنا ضروری ہے۔ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے، یعنی اتنے بدن کا چھپانا فرض ہے، ناف کا چھپانا فرض نہیں، لیکن گھٹنا ڈھکنا فرض ہے۔ آزاد عورت کے لیے اور خنثی کے لیے سارا بدن عورت ہے سوائے منہ اور ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں کے، سر کے لٹکتے ہوئے بال اور گردن اور کلائیاں بھی عورت ہے، ان کا چھپانا بھی فرض ہے۔ اگر عورت نے اتنا باریک دوپٹہ جس کے بال کی سیاہی چمکے اوڑھ کر نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی۔ باندی کے لیے سارا پیٹ اور پیٹھ اور دونوں پہلو اور ناف کے گھٹنوں تک عورت ہے۔ جن اعضاء کا چھپانا فرض ہے ان میں سے کوئی عضو اگر چوتھائی سے کم کھل گیا تو نماز ہو جائے گی، اور اگر چوتھائی عضو کھل گیا اور فوراً چھپا لیا جب بھی نماز ہو جائے گی۔ اگر بقدرے ایک رکن یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر کھلا رہا یا قصدن کھولا، اگرچہ فوراً چھپا لیا، نماز جاتی رہی۔ مرد کے اعضائے عورت 9 ہیں۔ پہلا ذکر، دوسرا انثیین دونوں مل کر 1، تیسرا دبور، چوتھا پانچواں ہر ایک سورین ایک مستقل عورت ہے، چھٹا اور ساتواں ہر ران علیحدہ علیحدہ ایک عورت ہے، آٹھواں ناف کے نیچے سے لے کر عضو تناسل کی جڑ تک اور اس کے سیدھے میں پیٹھ اور دونوں کروٹوں کی جانب سے ملا کر ایک عورت ہے، نواں دبور و انثیین کے درمیان کی جگہ ایک مستقل عورت ہے۔ یہ جو 9 اعضائے عورت گنائے گئے ہیں ان میں سے ہر ایک عضو ہے، یعنی ایک کا چوتھائی سے کم کھل گیا تو نماز ہو جائے گی۔ اگر چند اعضاء میں کچھ کھلا رہا کہ ہر ایک عضو کی چوتھائی سے کم ہے، مگر مجموعہ ان کھولے ہوئے اعضاء میں سے جو سب سے چھوٹا ہے اس کی چوتھائی کے برابر ہے تو نماز نہ ہوئی۔ مثلاً عورت کی کان کا 9واں حصہ اور پنڈلی کا 9واں حصہ کھلا رہا اور مجموعہ ان دونوں کان کی چوڑائی کے برابر ضرور ہے، لہٰذا نماز اس صورت میں نہ ہوگی۔ نماز شروع کرنے وقت اگر کسی عضو کی چوتھائی کھلی رہی یعنی اسی حالت پر اللہ اکبر کہا تو نماز شروع ہی نہ ہوئی۔ عورت کے اعضائے عورت کا شمار۔ عورت کے لیے علاوہ ان 5 عضو کے جن کا بیان اوپر گزر چکا سارا بدن عورت ہے، جس میں 30 اعضاء شامل ہے۔ ان میں سے جس عضو کی چوتھائی کھل جائے نماز کا وہی حکم ہے جو اوپر بیان ہوا۔ پہلا سر یعنی ماتھے کے اوپر سے گردن کے شروع تک، دوسرا بال جو لٹکتے ہوں، تیسرا چوتھا دونوں کان، پانچواں گردن، چھٹا ساتواں دونوں شانہ، آٹھواں نواں دونوں بازو کوہنیوں سمیت، 10واں 11واں دونوں کلائیاں یعنی کوہنی کے بعد سے گٹوں کے نیچے تک، 12واں سینہ یعنی گلے کے جوڑ سے دونوں پستان کے نیچے تک، 13 اور 14واں دونوں ہاتھ کی پیٹھ، 15 16 دونوں پستانے، 17 پیٹ یعنی سینے کی حد جو اوپر ذکر ہوئی اس حد سے لے کر ناف کے نچلے کنارے تک یعنی ناف کا بھی پیٹ ہی میں شمار ہے، 18 پیٹھ یعنی پیچھے کی جانب سینے کے مقابل سے کمر تک، 19 دونوں شانوں کے بیچ میں جو جگہ ہے بغل کے نیچے سینے کی نچلی حد تک، 20 21 دونوں سورین، 22 فرض، 23 دبور، 24 25 دونوں رانے یعنی ہر ران چڈھے سے گھٹنے تک یعنی گھٹنوں سمیت ایک عضو ہے، گھٹنا ایک عضو نہیں، 26 ناف کے نیچے پیڑو اور اس سے ملی جو جگہ ہے اور ان کے مقابل پیٹھ کی طرف سب ملا کر ایک عورت ہے، 27 28 دونوں پنڈلیاں ٹخنوں سمیت، 29 30 دونوں تلوے۔ بعض علماء نے ہاتھ کی پیٹھ اور تلووں کو عورت میں داخل نہیں کیا۔ محرم اور غیر محرم کی تعریف۔ عورت کا چہرہ اگرچہ عورت نہیں لیکن غیر محرم کے سامنے منہ کھولنا منع ہے، یوں ہی غیر محرم کو اس کا دیکھنا جائز نہیں۔ اگر کسی مرد کے پاس سطر کے لیے جائز کپڑا نہیں اور ریشمی ہے تو فرض ہے کہ اسی سے سطر کرے اور اسی میں نماز پڑھے۔ البتہ اور کپڑے ہوتے ہوئے مرد کو ریشمی کپڑا پہننا حرام ہے اور ریشمی کپڑے میں نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، یعنی پھر سے پڑھنا واجب ہے۔ اگر ننگے شخص کو چٹائی یا بچھونا مل جائے تو اسی سے سطر کرے، ننگا نہ پڑھے۔ یوں ہی اگر گھاس یا پتیوں سے سطر کر سکتا ہے تو یہی کرے۔ کسی کے پاس بالکل کپڑا نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھے
और रुकू व सजदा इशारे से करे, चाहे दिन हो या रात, घर में हो या मैदान में। अगर दूसरे के पास कपड़ा है और गालिब गुमान है कि मांगने से दे देगा तो मांगना वाजिब है। अगर नापाक कपड़े के सिवा कोई और कपड़ा नहीं और पाक करने की कोई सूरत भी नहीं तो नापाक ही कपड़े से सतर करे और नंगा न पढ़े। अगर पूरे सतर के लिए कपड़ा नहीं और इतना है कि बास आज़ा का सतर हो जाएगा तो उससे सतर वाजिब है, और उस कपड़े से औरत गलीजा यानी आगा पीछा छुपाए, और इतना हो सके कि एक ही छुपा सके तो एक ही छुपाए। अगर खड़े होकर नमाज पढ़ने से चौथाई सतर खुलता है तो बेहतर है कि बैठकर पढ़े। नमाज की तीसरी शर्त वक्त का बयान। फजर का वक्त सुबह सादिक से लेकर सूरज की किरण चमकने तक। सुबह सादिक किसे कहते हैं? सुबह सादिक एक रोशनी है जो सूरज निकलने से पहले सूरज के ऊपर आसमान के पूर्वी किनारे में दिखाई देती है और बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि तमाम आसमान पर फैल जाती है और उजाला हो जाता है। इस रोशनी के जाहिर होते ही सहरी का वक्त खत्म और नमाज फजर का वक्त शुरू हो जाता है। इस रोशनी के पहले बीच आसमान में एक लंबी सफेदी पूरब से पश्चिम की तरफ उठती हुई दिखाई देती है। के नीचे सारा उफक स्याह होता है। सुबह सादिक उसके नीचे से फूटकर उत्तर दक्षिण दोनों पहलुओं पर फैलकर ऊपर बढ़ती है। यह लंबी सफेदी सुबह सादिक की सफेदी में गायब हो जाती है। इस लंबी सफेदी को सुबह काजिब कहते हैं। इससे फजर का वक्त नहीं होता। सुबह सादिक की रोशनी उन शहरों में जो 27 से 28 दर्जा या उसके करीब अर्जुल बलद पर है, जैसे बरेली, लखनऊ, कानपुर वगैरह, छोटे दिनों में तकरीबन सवा घंटा और गर्मी में तकरीबन 1.5 घंटा कुछ कम व बेश सूरज निकलने से पहले जाहिर होता है। फजर की नमाज के लिए सुबह सादिक की सफेदी जब चमक कर जरा फैलनी शुरू हो उसका एतबार किया जाए, और इशा पढ़ने और सहरी खाने में इब्तिदाए तुलू सुबह सादिक का एतबार करे, यानी फजर उस वक्त तक पढ़ें और इशा और सहरी उस वक्त उसी दम खत्म समझें जब सुबह सादिक की सफेदी जरा सी भी शुरू हो। जोहर का वक्त जवाल यानी सूरज ढलने से लेकर उस वक्त तक है कि हर चीज का साया अलावा साया असली के दुना हो जाए। मसलन ठीक दोपहर को किसी चीज का साया 4 अंगुल था और वह चीज 8 अंगुल की है, तो जब उस चीज का साया कुल 20 अंगुल हो जाए तब जोहर का वक्त खत्म होगा। साया असली की तारीफ। असली साया वह साया है जो ठीक दोपहर के वक्त होता है जब आफताब खते निफ्सुन नोहार पर पहुंचता है, यानी ठीक बीचों बीच आसमान पर कि पूरब पश्चिम का फासला बराबर होता है, तो यह ठीक दोपहर होती है। उस जगह से जरा पश्चिम को झुका और जोहर का वक्त शुरू हुआ। दोपहर ढलने की पहचान और जुमा का वक्त। सूरज ढलने की पहचान यह है कि बराबर जमीन पर एक बराबर लकड़ी सीधी एक तरफ गाड़े कि पूरब पश्चिम बिल्कुल झुकी न हो। जितना सूरज ऊंचा होता जाएगा उस लकड़ी का साया कम होता जाएगा। जब कम होना रुक जाए तो यह ठीक दोपहर है और यह साया असली है। इसके बाद साया बढ़ना शुरू होगा और यह इस बात की दलील है कि सूरज खते निफ्सुन नहार से झुका और यह जोहर का वक्त हुआ। जुमा का वक्त वही है जो जोहर का वक्त है। असर का वक्त। जोहर का वक्त खत्म होते ही असर का वक्त शुरू हो जाता है और सूरज डूबने तक रहता है। इन शहरों में असर का वक्त कम से कम तकरीबन 1.5 घंटा होता है और ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा, कुछ मिनट कम व बेश। जाड़ों में यानी नवंबर से मार्च के तीसरे हफ्ते तक तकरीबन 3.25 महीने तकरीबन 1.5 घंटा रहता है और ये करीब करीब सबसे छोटा वक्त असर है। और अप्रैल मई में तकरीबन 2.25 घंटा कुछ कम व बेश मुख्तलिफ तारीखों में, और आखिर मई व जून में तकरीबन 2 घंटा कुछ कम व बेश मुख्तलिफ तारीखों में। फिर अगस्त सितंबर में तकरीबन 2.25 घंटा और आखिर अक्टूबर तक 1.5 घंटा के करीब रह जाता है। यह जो वक्त लिखा गया है मुख्तलिफ शहरों और मुख्तलिफ तारीखों के लिहाज से 2-4 मिनट कम व बेश होगा। यह एक मोटा अंदाजा करने के लिए लिख दिया है। जिन साहबों को हर मकाम और हर तारीख का सही वक्त मालूम करना हो वह हमारी किताब अल औकात मुलाहिजा फरमाए। मगरिब का वक्त। सूरज डूबने के बाद से शफक जाने तक। शफक किसको कहते हैं? शफक से मुराद वो सफेदी है जो सुर्खी जाने के बाद पश्चिम में सुबह सादिक की सफेदी की तरह उत्तर दक्षिण फैली रहती है। यह वक्त इन शहरों में कम से कम 1.25 घंटा और ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा होता है। हर रोज जितना वक्त फजर का होता है उतना ही मगरिब का भी होता है। ईशा का वक्त। शफक की सफेदी गायब होने के बाद से लेकर सुबह सादिक शुरू होने तक। शफक की सफेदी गायब होने के बाद एक लंबी पूरब पश्चिम फैली हुई सफेदी भी होती है
इसका कुछ एतबार नहीं, वो मिसल सुबह काजिब के है। इससे पहले मगरिब का वक्त खत्म हो जाता है और इसके होते हुए भी ईशा का वक्त हो जाता है। वितर का वक्त वही है जो ईशा का वक्त है, अलबत्ता ईशा की नमाज से पहले नहीं पढ़ी जा सकती कि इनमें तरतीब फर्ज है। अगर कसदन ईशा की नमाज पढ़ने से पहले वितर पढ़ ली तो वितर न होगी, ईशा के बाद फिर पढ़ना होगा। हाँ, अगर भूल कर वितर पढ़ ली या बात को मालूम हुआ कि ईशा की नमाज बेवजू पढ़ी थी और फिर वितर वजू से पढ़ा तो वितर हो गई। जिस खित्ते जमीन में जिन दिनों में ईशा का वक्त आता ही नहीं तो वहां उन दिनों में ईशा और वितर कज़ा पढ़ी जाए। मुस्तहब औकात, फजर में ताखीर मुस्तहब है, यानी जब खूब उजाला हो जाए तब शुरू करे, मगर ऐसा वक्त होना मुस्तहब है कि 40 से 8 आयत तरतील के साथ पढ़ सके और सलाम फेरने के बाद फिर इतना वक्त बाकी रहे कि अगर नमाज में फसाद जाहिर हो तो तहारत करके तरतील से 40 से 60 आयत दोबारा पढ़ सके। और इतनी ताखीर मकरूह है कि आफताब निकलने का शक हो जाए। औरतों के लिए हमेशा फजर की नमाज अव्वल वक्त में मुस्तहब है और बाकी नमाजों में बेहतर है कि मर्दों की जमात का इंतजार करे, जब जमात हो तब पढ़ें। जाड़े की जोहर में जल्दी मुस्तहब है, गर्मी के दिनों में देर करके पढ़ना मुस्तहब है, ख्वाह तन्हा पढ़े या जमात के साथ। अलबत्ता अगर गर्मियों में जोहर की नमाज जमात अव्वल वक्त में होती हो तो मुस्तहब वक्त के लिए जमात छोड़ना जायज नहीं। मौसम रबी जाड़ों के हुक्म में है और खरीफ गर्मियों के हुक्म में। जुमा का मुस्तहब वक्त वही है जो जोहर के लिए है। असर की नमाज में हमेशा ताखीर मुस्तहब है, मगर न इतनी ताखीर कि खुद आफताब के गोले में जर्दी आ जाए कि उस पर बेतकल्लुफ बेगुबार व बुखार निगाह जमने लगे। धूप की जर्दी का एतबार नहीं। बेहतर यह है कि जोहर मिसले अव्वल में पढ़ें और असर मिसले सानी के बाद। तजर्बा से साबित हुआ है कि कुर्से आफ्ताब यानी सूरज में यह जर्दी उस वक्त आ जाती है जब गुरूब में 20 मिनट बाकी रह जाती है, तो उसी कद्र वक्त कराहत है। यूं ही बाद तुलू 20 मिनट के बाद जवाज़े नमाज का वक्त हो जाता है। ताखीर से मुराद यह है कि वक्त मुस्तहब के 2 हिस्से किए जाएं और पिछले हिस्से में नमाज अदा की जाए। बदली के दिनों में जब बादल हो रहे हों सिवा मगरिब में हमेशा ताजील जल्दी करना मुस्तहब है। 2 रकत से जायद की ताखीर मकरूह तंजीही, और अगर बगैर उज्र सफर व मर्ज वगैरह इतनी ताखीर की कि सितारे गुद गए तो मकरूह तहरीमी। इशा में तिहाई रात तक ताखीर मुस्तहब है और आधी रात तक ताखीर मुबाह जायज, यानी जबकि आधी रात होने से पहले फर्ज पड़ चुके और इतनी ताखीर की रात ढल गई मकरूह है कि बाइसे तकलीले जमात है। इशा की नमाज पढ़ने से पहले सोना मकरूह। इशा की नमाज के बाद दुनिया की बातें करना, किस्से कहानी कहना, सुनना मकरूह। जरूरी बातें तिलावत कुरान शरीफ और जिक्र और दीनी मसाइल और बुजुर्गों के किस्से और मेहमान से बातचीत करने में हर्ज नहीं। यूं ही सुबह सादिक से आफ्ताब निकलने तक जिक्र इलाही के सिवा हर बात मकरूह है। जो शख्स अपने जागने पर भरोसा रखता हो उसको आखिर रात में वितर पढ़ना मुस्तहब है, वरना सोने से पहले पढ़ ले। फिर आखिर रात में आंख खुली तो तहज्जुद पढ़े, वितर दोबारा पढ़ना जायज नहीं। बदली के दिन में असर और इशा में ताजील जल्दी करना मुस्तहब है और बाकी नमाजों में ताखीर मुस्तहब। मकरूह औकात तुलू सूरज का निकलना व गुरूब सूरज का डूबना व निफ्सुन नहार दोपहर, इन तीनों वक्तों में कोई नमाज जायज नहीं। न फर्ज न वाजिब न नफल न अदा न कज़ा न सजदे तिलावत न सजदे सहव। अलबत्ता उस रोज की असर की नमाज अगर नहीं पढ़ी तो अगरचे आफ्ताब डूबता हो तो पढ़ ले, मगर इतनी देर करना हराम है। तुलू से क्या मुराद है? तुलू से मुराद सूरज का किनारा निकलने से लेकर पूरा निकल आने के बाद उस वक्त तक है कि जब पर आंख चुंधियाने लगे, और इतना कुल वक्त 20 मिनट है। निफ्सुन नहार और जहवे कुबरा का बयान। निफ्सुन नहार से मुराद निफ्सुन नहार शरई से लेकर निफ्सुन नहार हकीकी यानी सूरज ढलने तक है, जिसको जहवे कुबरा कहते हैं। निफ्सुन नहार शरई मालूम करने का तरीका यह है कि आज जिस वक्त सुबह सादिक शुरू हुई उस वक्त से लेकर सूरज डूबने तक जितने घंटे हों उनके 2 हिस्से करो। पहले हिस्से के खत्म पर निफ्सुन नहार शरई शुरू हो जाएगी और सूरज ढलते ही खत्म हो जाएगी। मसलन आज 20 मार्च को 6 बजे शाम को सूरज डूबा और तकरीबन 6 बजे ही निकला, तो 12 बजे दिन को ठीक दोपहर हुई और 4:30 बजे सुबह को सुबह सादिक हुई,
तो कल सुबह सादिक से सूरज डूबने तक 13.5 घंटे हुए, जिसका आधा 6.25 घंटा हुआ। अब सुबह सादिक के शुरू यानी 4.5 घंटे से यह 6.25 घंटा वक्त गुजरने दो, 11:15 बज जाएंगे। अब 11:15 बजे निफ्सुन नहार शरई यानी जहवे कुबरा शुरू हुआ और ठीक 12 बजते ही जब सूरज पश्चिम को ढला जहवे कुबरा खत्म हुआ। इससे मालूम हुआ कि आज 6.25 घंटा यानी 11:15 बजे दिन से 12 बजे तक निफ्सुन नहार शरई रहा, यानी यह इतना 6.25 घंटा का वक्त नाजायज वक्त है। तंबीह, इन शहरों के लिहाज से यह एक तकरीबी मिसाल है। मुख्तलिफ मकाम व मुख्तलिफ जमानों में कम व बेश भी होगा। हर जगह और हर दिन का इसी कायदे में ठीक ठीक जहवे कुबरा निकाले। जनाजा अगर औकाते ममनुआ में लाया गया तो उसी वक्त पढ़े, कोई कराहत नहीं। कराहत उस सूरत में है कि पेशतर से तैयार मौजूद है और देर की, यहाँ तक कि वक्त कराहत आ गया। इन तीनों वक्तों में तिलावत कुरान मजीद बेहतर नहीं, बेहतर यह है कि जिक्र व दरूद शरीफ में मशगूल रहे। किन 12 वक्तों में नफल पढ़ना मना है? 12 वक्तों में नवाफिल पढ़ना मना है। पहला, सुबह सादिक से सूरज निकलने तक कोई नफल जायज नहीं सिवाय फजर की 2 रकत सुन्नत के। दूसरा, अपने मजहब की जमात के लिए इकामत हुई तो इकामत से खत्म जमात तक नफल व सुन्नत पढ़ना मकरूह तहरीमी है। अलबत्ता अगर नमाज फजर कायम हो चुकी और जानता है कि सुन्नत पढ़ेगा जब भी जमात मिल जाएगी, अगरचे कायदा में शिरकत होगी, तो हुक्म है कि जमात से दूर अलग फजर की सुन्नत पढ़कर जमात में शरीक हो जाए। और अगर ये जानता है कि सुन्नत पढ़ूंगा तो जमात न मिलेगी, तो सुन्नत के ख्याल से जमात छोड़ी तो यह नाजायज है और गुनाह है। और फजर के सिवा बाकी नमाजों में अगरचे ये जाने की सुन्नत पढ़ के जमात मिल जाएगी, सुन्नत पढ़ना जायज नहीं, जबकि जमात के लिए इकामत हुई। नमाज असर पढ़ने के बाद से आफताब जर्द होने तक नफल पढ़ना मना है। सूरज डूबने से लेकर मगरिब के फर्ज पढ़ने तक नफल जायज नहीं। जिस वक्त इमाम अपनी जगह से जुमा के खुतबे के लिए खड़ा हुआ उस वक्त से लेकर फर्ज जुमा खत्म होने तक नफल मना है। ऐन खुतबा के वक्त अगरचे पहला हो या दूसरा और जुमा का हो या ईदैन का खुतबा या कुसूफ यानी सूरज ग्रहण या इस्तिस्का यानी नमाज इस्तिस्का जो पानी बरसाने के लिए पढ़ी जाती है का खुतबा हो, हज व निकाह का हो, हर नमाज हत्ता की कज़ा भी नाजायज है, मगर साहिब तरतीब के लिए जुमा के खुतबा के वक्त कज़ा की इजाजत है। जुमा की सुन्नतें शुरू कर दी थी। इमाम खुतबा के लिए अपनी जगह से उठा तो 4 रकत पूरी कर ले। 7वां, ईदैन की नमाज से पहले नफल मकरूह है, चाहे घर में पढ़े या ईदगाह में या मस्जिद में। 8वां, ईदैन की नमाज के बाद नफल मकरूह है, जबकि ईदगाह या मस्जिद में पढ़े, घर में पढ़ना मकरूह नहीं। 9वां, अरफात में जो जोहर व असर मिलाकर पढ़ते हैं उनके बीच में और बाद में नफल व सुन्नत मकरूह है। 10वां, मुजदलफा में जो मगरिब और इशा जमा किए जाते हैं फकत उनके बीच में नफल और सुन्नत पढ़ना मकरूह है, बाद में मकरूह नहीं। 11वां, फर्ज का वक्त तंग हो तो हर नमाज यहाँ तक कि सुन्नत फजर व जोहर मकरूह है। 12वां, जिस बात से दिल बटे और उसको दूर कर सकता हो तो उसे बिला दूर किए नमाज मकरूह है, जैसे पेशाब या पाखाना, रिया का गलबा हो तो ऐसी हालत में नमाज मकरूह है। अलबत्ता अगर वक्त जाता हो तो पढ़ ले और ऐसी नमाज फिर दोहराए। यूं ही खाना सामने आ गया और इसकी ख्वाहिश हो या और कोई ऐसी बात हो जिससे दिल को इत्मीनान न हो और खुशू में फर्क आए तो ऐसी सूरत में नमाज पढ़ना मकरूह है। फजर और जोहर के पूरे वक्त अव्वल से आखिर तक बिला कराहत जायज है, यानी यह नमाजें अपने वक्त में जिस हिस्से में पढ़ी